located approximately 41 km far from Jammu city. This is the boundary wall which separates the mainland of Jammu region from the borderland. The construction of this embankment, commonly known as Ban, they are the front line of defense, designed to thwart infiltration attempts and mitigate ceasefire. On the other side of the embankment, there are army bunkers within the wall that are used for security purposes and were utilized during the historical conflicts with Pakistan. Beyond the embankment lies a massive ditch, built in earlier time to prevent enemy military vehicles from crossing into the mainland launching invasion. Across the embankment lied the first village of borderland from Jammu region, while on this side is the last village of India. As per the recent data available, this village consists of 400 to 450 houses and has a population of 1700 people. In this whole region, Urdu serves as the local language, while Dogri and Punjabi are the prominently spoken by the residents. The village's economy largely depends on agriculture, with crops like rice, wheat, and maize. On the west side of village lies Indo-Pak border, which is 2 km away from the village. This is the army bunker where in 2016 mortar guns were installed by Indian Army after Pakistan violated the ceasefire in this region, the first such violation in many decades. सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस समय चरम पर है। जम्मू के सांबा, रामगढ़ और अरनिया में रात भर से पाकिस्तान धुआंधार फायरिंग कर 1.5 घंटे में करीब 30 गोले दागे जा चुके हैं। Yet another ceasefire violation by Pakistan in Jammu and Kashmir at 4 different places along the international border. सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस समय चरम पर है। जम्मू के सांबा, रामगढ़ और अरनिया में रात भर से जम्मू के सांबा और रामगढ़ में पाकिस्तान की फायरिंग में बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की ओर से आक्रमण जो है वो इतना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 9 घंटे में पाकिस्तानी सीमा में गोले दाग रहा है। Pakistan continues its attempts to violate ceasefire at the border. In fact, shelling, we are learning, continued overnight, with Pakistani troops also targeting BSF posts in Aknoor sector as well as Araspura sector. In wake of the ceasefire violation by Pakistan in Jammu and Kashmir's Nowshera, families residing in the border villages have been forced to leave their homes. परी दिखाना Pari was 14 months old in 2016. It was the occasion of Bhai Dooj and she was playing with her cousins in the courtyard of her home when a mortar bomb from Pakistan landed there. The explosion tragically killed Pari's 2 cousins, one of her aunts and her grandfather, while Pari herself suffered serious injuries. Pari celebrated her first birthday barely 2 months ago. Today, she lies unconscious. जम्मू के सांबा में पाकिस्तान का मोर्टार लगने से 1.5 साल की मासूम परी की हालत नाजुक बनी हुई है। परी उन्हीं
माणाराम की पोती हैं, जिनकी कहानी हमने आपको दिखाई थी। बीते मंगलवार की सुबह जब परी के दादा माणाराम के घर भैया दूज का त्योहार मनाया जा रहा था, तभी उसके गांव रंगूर में एक पाकिस्तानी शैल उसके घर पर गिरा, जिसमें वो घायल हो गई। पूरा घर तो तबाह हुआ ही, साथ ही दादा माणाराम, उनकी बेटी और 2 नाती भी इस मौके पर उन्होंने दम तोड़ दिया। परी को अब दुआओं की जरूरत है। भी टिक्का उस दिन कुड़ी आई टिक्का लान, जियां आई इयां गै बंब पे वो यकदम खत्म होई गे उत्थे गै। ते 2 बच्चे हैं जेह्ड़े मामे दे घर आए दे हैं, ओह् बी घायल होई गे। फिर जिसलै अस नठियै जा दे हे, जिसलै बंब पौदे मोटरसाइकल उप्पर, अग्गें इंदी कुड़ी ही गली च गै, आंटी सानूं बी लेई जाओ। ते असें आखेआ असें अग्गें गै 2 जने मोटरसाइकल उप्पर, ते असें आखेआ अपना बच्चा देई ओड़, असें उसी पजाई ओड़ने रामगढ़ तक। असें बच्चा लेई लेआ, ते जिसलै थोह्ड़े अग्गें गे असें आखेआ इसी पानी ते पलाई लैचे, बेहोश होए दा बच्चा। मगर ओह् जिसलै दिक्खेआ ते ओह् बच्चा मरी गेदा। This village is also similar to other border villages, but what sets it apart is this army post that is situated right in the middle of the village. Due to its location, this entire area, including the village, has been subjected to border firing multiple times. फायरिंग तो जदों उत्थे आए ही तो उंदी होण दी है। हूँ गौरमेंट की साड़ी पता गै नहीं है कि इन्हें लोकें कुर्बानी की इंदे ये बच्चे भुखे मारी ते ये मतलब बजुर्ग साढ़े जमीनां पुट्टियां जां मतलब खेतर बाड़ियां बनाइयां ते हूँ भैन सानू कदे कोई साथ कदे कोई साथ कुत्थे जाणगे लोग, ये लोग कुत्थे जाणगे जी। Other than border firing, this entire region faces issues like long power cuts, weak mobile networks, and limited transportation facilities to reach the nearby cities. These are some of the issues in the border region, but not the only challenges that the people face here. In 2013, due to heavy rainfall, the Basanta River in this region experienced a significant increase in water flow, leading to the collapse of the concrete bund. This resulted in extensive flooding of the surrounding fields. Since that year, every monsoon season has been similar conditions, causing recurring flood-related challenges for the local community. तो दरिया तो जब आता है वो कुछ नहीं देखता है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, लेकिन ये सभी गरीब लोग हैं, ज़मींदारी पर डिपेंड हैं और ये भूखे मर जाएंगे। हमारे जहाँ पे 2014 में कुछ लोगों की ज़मीन बह गई थी, लेकिन आज तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला। ये लोग भी बस वही चीज़ जब देखते हैं ना, हम तो लोग इतने डरे हुए हैं, जब भी बारिश चढ़ती है हमें रात को ना बच्चों को नींद आती है ना हमें आती है। Jammu is often called the city of temples, but here in the border region, it's quite common to find these dargahs. Most of these dargahs have been there since before 1947. After the partition, where on this side only the Hindu population remained, they still wholeheartedly serve and worship at these dargahs
साढ़े जन्म को पहले जगह एक 47 कई 47 लगी दी नहीं थे। ये बहुत पुराना कब्रस्तान है। कब्रस्तान की होंदा कोई जाना तो है वो, लेकिन जानने तो पहचानने से कोई फर्क होता। कोई फकीर नहीं बैठा होना, क्योंकि आम तौर कोई भी जगह देखोगे तुम बाबे लोग बैठे होंगे थे, बाद तो उठ के दफनाई होती उन्हें। 1947 से पहले की बात है, तब यहाँ पे चमलियाल नाम गाँव हुआ करता था। तो सामने हमारे जो गांव पड़ता पाकिस्तान में, उस गांव का नाम है सैदावली। इस गांव के जो लोग थे अभी वो पाकिस्तान चले गए जब से बंटवारा हुआ है। ये जो बाबा जी, इनका नाम है दलीप सिंह मनहास। इनका जो धड़ है यहाँ पे गर्दन पाकिस्तान में है। तो इनके चलते एक बहुत बड़ा एक मेला लगता है यहाँ पे। उस मेले में क्या होता है कि पाकिस्तान से हमें चादर आती है और यहाँ से उनको हम जल और शक्कर देते हैं। तो सन 2017-18 में मतलब उन्होंने हमारे 4 अफसर शहीद कर दिए मेले से एक हफ्ता पहले। तब से मतलब उनसे हमारा कोई लाजन नहीं रहा, ना ही उनको जल शक्कर दिया गया और ना ही उनसे चादर ली गई। वो वीरता की मिसाल या समर्पण बेमिसाल, वो बेखौफ उसकी चाल, वो दुश्मनों का काल। सरहद पर तैनात हमारा वीर सेनानी है, हर क्षेत्र में विजेता, वो रचता नई कहानी है, वो रचता नई कहानी है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे गांव के नागरिकों के अलावा केवल भारतीय सेना के जवान ही हैं जो न केवल हमारी सीमा पर तैनात रहते हुए देश की रक्षा करते हैं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की ढाल भी बनते हैं। जब सरहद पार से गोलियों की बौछार होती है, ये सैनिक न केवल बहादुरी से मोर्चा संभालते हैं, बल्कि सीमावर्ती गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। सधे हुए कदम और अनुशासन की मिसाल बने ये सैनिक जब परेड करते हैं तो हर कदम के साथ उनके आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना प्रकट होती है। तिरंगे की शान में उनकी चाल न केवल एक दृश्य सौंदर्य रचती है, बल्कि हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना जगाती है। कुछ तो बात है भारतीय सेना में जो हर दिल को गर्व और विश्वास से भर देती है। इन्हें देखकर बच्चे अपने सपनों में वीरता का रंग भरते हैं और बुजुर्ग अपनी चिंताओं को भूलकर सुकून और सम्मान का एहसास करते हैं। सेना का ये साहस, अनुशासन और समर्पण हर व्यक्ति के दिल में गर्व और आत्मविश्वास का संचार करता है।